Good morning, everyone. 11th Commerce Economics. Now, chapter number 3 Demand. Introductions. Demand and supply are very important concept among basic concept of economics. डिमांड और सप्लाई हमारे मार्केट के सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इसके बिना ट्रेडिंग का और कॉमर्स का कोई भी काम हो सकता नहीं, क्योंकि हम शॉप पे जाकर के कुछ भी अगर परचेज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिमांड, एंड नाउ वो हमें जो प्रोवाइड करता है दिस इज़ नॉन एज सप्लाई. A person cannot have analytical power without explanations of demand and supply in the economics. Therefore, explanations of two market forces called demand and supply is necessary. Demand and supply के बिना मार्केट का कोई भी कामकाज हो सकता नहीं है. So these are two are compulsory and necessary elements of every market. We will study the concept of demand. चलिए चलते हैं डिमांड के ऊपर स्टडी करते हैं. Meaning, demand is the quantity of a commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. यहाँ पे आपको डेफिनेशंस में एंड मीनिंग में 5 पॉइंट्स दे करके रखे हैं कि फर्स्ट बायर डिज़ायर्स, कि सबसे पहले किसी भी इंसान की इच्छा होनी चाहिए, ही इज़ एबल, वो परचेज करने में एबल होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए टू बाय एट अ गिवन प्राइस और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. This is known as demand. Demand is thus determined by the 5 factors, namely desires, willingness to buy, ability to buy and a particular price and particular point of time. देखिए सेम चीज़ आ गई, जो 5 पॉइंट्स ऊपर मीनिंग के अंदर डिफाइन किए गए वो यहाँ पे अलग से देके रखेंगे. एंड ऑल ऑफ दिस 5 फैक्टर्स आर एसेंशियल्स टू डिफाइन डिमांड. नाउ we can comes on the factors of demands. There are two types of factors. First one, price of that commodities and services, and second one, factors other than price. चलिए चलते हैं फर्स्ट फैक्टर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सर्विसेज. Price of the concerned good is the most important determinant of its demand. When price of a goods is false, a rational consumers will buy more. Like illustrations, demand expand when price falls. A rational consumers will buy less if demand contracts. मतलब जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस कम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, एडमायर हो जाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने के लिए. तो जब गुड्स की प्राइस फॉल होगी तो डिमांड कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और गुड्स की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर डिमांड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है. तो जब गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स डिमांड एक्सपांडेड. और जब गुड्स की प्राइस कम हो जाती है और जब गुड्स की प्राइस हाई हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है दैट मीन्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. Now, other determinants and other factors, tastes and preference of a consumer. First point, to a considerable extent and demand depends upon taste and preference of a consumer. These are associated with her and he likes and dislikes. If a person's fond to reading, her and his preference for reading will change with age. Like illustrations, at a young age, a person prefers to read story books, and adolescents many and may prefers to read novel, and in old age may prefers the read spiritual books. जैसे जैसे एज वाइज यहाँ पे आपको ग्रुप दिए गए हैं कि भाई एज वाइज इंसान क्या करता है, अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कंज्यूमर का चेंज होता रहता है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, income of a consumers. The demand for a commodity increase with the increase in the consumer's income. When income of a consumer falls, her and his demand for a goods falls, and thus there is a direct relationship between income and demand. However, there are some goods known as inferior goods in economics whose demand decreases with increase in the income, and thus these goods are exceptions to the direct relationship between the income and demand. मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है. सो इनकम अगर हाई हुई तो डिमांड भी हाई हो जाएगी, इनकम अगर लो हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इन्फीरियर गुड्स होता है, जिनके चेंज होने से डिमांड चेंज होती नहीं है, जैसे कि इनकम चेंज होगी बट डिमांड चेंज नहीं होगी. जैसे मैचवॉक्स हुआ, सॉल्ट हुआ,
इसकी जितनी ज़रूरत होती है उतना ही आप यूज़ करेंगे, आपकी इनकम बढ़ने पर इसकी डिमांड बढ़ती नहीं है और आपकी इनकम घटने पर ये घटता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नॉर्मली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हेन एनी गुड्स इज यूज्ड इन वन प्लेस, किसी एक गुड्स के प्लेस पे दूसरे गुड्स का यूज़ होता है, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स इन द मार्केट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस and the availability of its related goods, namely substitute goods and complementary goods. चलिए चलते हैं फर्स्ट, price of substitute goods. Substitute goods are those goods which can be easily used in the place of one another. एक दूसरे के प्लेस पर यूज आने वाले गुड्स को हम substitute goods के नाम से जानते हैं. Such goods have a similar characteristics. They can be used alternatively in the satisfactions of a want. In other words, substitute goods are severally competing goods. Like illustrations, very closely competing brands of televisions, motorcycle, refrigerator, etc. substitute one another. If the price of substitute goods falls, then the consumer may choose to replace his and her current brand with the substitute goods has become cheaper, and hence demand for a goods falls when price of its a substitute goods falls. यहाँ पर सेम चीज़ है कि जब किसी एक ही यूज़ में दो गुड्स आते हैं, सपोज मान लो ए एंड बी, अगर एक ही प्राइस हाई हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, ए को छोड़ करके बी को पसंद करते हैं. जैसे मोटर बाइक को यूज़ करने के लिए देखा जाए तो उसका यूज़ एक ही होता है राइड करने के लिए, बट उसकी कंपनी बहुत सारी होती हैं. अगर किसी एक कंपनी के गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो पर्सन क्या करता है, उस कंपनी के गुड्स को छोड़ करके दूसरी कंपनी के गुड्स को पसंद करता है जिसकी प्राइस कम होती है. सो दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि होंडा और हीरो कंपनी. अगला आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर. जहाँ पर दो चीज़ें एक साथ यूज़ में आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. वन गुड्स कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट द अदर. एक दूसरे के बिना एक दूसरे का यूज़ हो सकता नहीं है. इन अदर वर्ड्स दे मस्ट बी कंज्यूम्ड ज्वाइंटली टू सेटिस्फाई अ वांट एंड नीड. वो एक साथ ही कंज्यूम करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड. मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड के बिना काम नहीं करेगा और सिम कार्ड मोबाइल फ़ोन के बिना किसी काम का नहीं है. एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी, spectacles from the spectacles, glasses, etc. If the price of a complementary goods rises, then the demand for the original goods falls and vice versa. Since these goods are jointly consumed, price rise in even one of these goods make the joint consumptions expensive, and so the consumer demands lesser of both and vice versa. यहाँ पर दोनों के दोनों गुड्स एक साथ यूज़ में आते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई काम होता नहीं, दोनों साथ में यूज़ आएंगे. हाँ, डिफरेंस इतना हो जाता है, मान लो ए एंड बी टू टाइप्स के गुड्स हैं, ए और बी दोनों का यूज़ करना है, बट अगर बी की प्राइस ज़्यादा और ए की प्राइस कम है तो हम क्या करेंगे, ए को ज़्यादा परचेज़ करेंगे और बी को कैसा परचेज़ करेंगे, कम, बट यूज़ तो दोनों आने वाले हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है expectations about future price. An individual's expectations about the future price of a goods affected her and his current demand for that good. If the consumer expect the price of a goods to rise in the futures, her and his demand for the goods increases in the current period and vice versa. अगर हम फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि फ्यूचर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस घटेगी या बढ़ेगी, सपोज़ मान लो कि फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम क्या करते हैं, करंट में प्रेजेंट टाइम में उसका स्टॉक ज़्यादा कर लेते हैं. इन शॉर्ट, अगर फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ेगी तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट की डिमांड के ऊपर इफेक्ट करता है. लास्ट पॉइंट आता है साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशंस. द साइज एज वेल एज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन इम्पैक्ट द टोटल मार्केट डिमांड फॉर अ गुड्स. If total populations is large and the total market demand will be more and vice versa. Likewise, if greater population belongs to a particular age groups, then the demand for certain goods in the market will be more. जैसे एज ग्रुप होती है, स्मॉल चाइल्ड्स होता है या एल्डर्स होता है या यंगर्स होता है या ओल्डर्स होता है, उस हिसाब से डिमांड होती है. अगर चाइल्ड का रेशियो ज़्यादा है
तो टॉयज़ होते हैं या एजुकेशन के सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर यंगर्स होते हैं तो फैसिलिटी से रिलेटेड डिमांड ज़्यादा होती है। ओल्डर्स होते हैं तो मेडिसिन है, बाकी चीज़ों की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उसी के साइज़ के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ डिमांड देखे कि भाई डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ये आपको अच्छे से करने रहेंगे, बाकी का टॉपिक चलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।